गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया। सबको मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर। आज वो ऑफिशियली त्रिपुरा मोर्चा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा मोर्चा विजय कुमार रामकौर। यहाँ में हमारे टीम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, MDC श्री रविंद्र देवर्मा, रुनिल देवर्मा, अंशु कुमार त्रिपुरा एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ में गणेश देवर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देवर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफा दिया था ऑनरेबल स्पीकर पर, और फॉर्मेलिटीज क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज जॉइन त्रिपुरा मोर्चा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ त्रिपुरा मोर्चा। वेलकम कहते हम नमस्ते धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड वी विल बी हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি 2018 পলিসিং গভর্নমেন্টে রায়মা ভ্যালি থেকে নির্বাচিত হয়েছিল, এবং আমি আইপিটি 2014 থেকে আমার প্রথম আমার পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ছিল আমার আইপিটিতে। দীর্ঘ 8 বছর ধরে আমি এক আঞ্চলিক দল আইপিটির সঙ্গে জড়িত ছিল। আজকে গতকালকে আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে আমাদের ভূভাগরা সকল অংশের মানুষকে নিয়ে আজকে, যেহেতু ভূভাগরা সবাইকে ডাক দিয়েছে দেশের ত্রিপুরাসা, আমি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে যে মহারাজা আমাদের জন্য যে মাঠে নেমেছে, আমাদের জন্য লড়াই করছে, আমি ব্যক্তিগত এই পরিস্থিতিতে মহারাজার সহযোগিতা করা এবং মহারাজার কাছে এবং মহারাজার সংগঠনে ত্রিপুরা মোর্চার কাছে সামিল হয়ে কাজ করা এবং মহারাজাকে সহযোগিতা করা, এটা আমি সিদ্ধান্ত। এবং জানেন সবাই আইপিটি যে ডিমান্ড এবং আমাদের মহারাজার যে ডিমান্ড একই ত্রিপুরালেন ত্রিপুরালেন। আমাদের মহারাজা যে সকলকে আহ্বান করেন যে আমরা সবাই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ত্রিপুরাসার উন্নয়নের জন্য যে লড়াই সংগ্রাম করে ময়দান নেমেছে আমরা সবাই। আমি এই মুহূর্তে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল থাকতেই পারে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কথা বলতেই পারে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহারাজাকে সহযোগিতা করা এবং মহারাজা একা নয়, আমরা সবাই ত্রিপুরাসা আছে, 12 লক্ষ ত্রিপুরাসা। আমি 12 লক্ষের মধ্যে আমিও এই দলনীতি আমিও এখানে আছি। এই সময়ে মহারাজাকে সাহায্য করা এবং মহারাজার হাতে হাত মিলে আমরা কাজ করার জন্য আমি প্রস্তুতি নিয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এবং আজকে আমার সাথে আমাদের রায়মা ভ্যালি নেতৃত্ব রয়েছেন, আমি কমসে কম 100 জনের লিডার রয়েছেন আজকে, এবং আগামী দিনে আসবে, এবং আগামী দিনে বিভিন্ন দল থেকে আসবে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে আসবে, শুধু আইপিটি নয়। আমি শুধু রায়মা ভ্যালি থেকে নয়, আগামী অন্যান্য লং ট্রাইবেলি থেকেও পর্ব থেকেও অম্পি থেকেও
অনেকটা কয়েকটা জায়গা থেকে বিভিন্ন দল থেকে আমরা আইপিএফটি মহারাজার দলে সামিল হব এবং বিভিন্ন লিডাররা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন এমএলএরাও রয়েছেন। তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজার যে আইডিওলজি, মহারাজার যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করবো, হাতে হাত মিলে আমরা তাকে মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন। কিন্তু এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরা ছাড়া কেউ মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো ধর্ম হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আছে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরার সাথে নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এই যে ত্রিপুরাসা, আমি দফাই সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হচ্ছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ। Any questions that you have? अगर कोई सवाल है? सर मेरा एक सवाल था। 2018 का जो इलेक्शन है तब से आप लोग त्रिपुरालैंड को लेकर आईपीएफटी बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, तो ऐसा क्या हो गया 4.5 साल में जो त्रिपुरालैंड का जो प्लान था आपका वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया? एक्चुअली आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा आईपीएफटी गलत किया विदाउट डिटेल। ये आप लोग जानते हैं ये आईपीएफटी का सबसे ज़्यादा यूथ लोग ने काम किया है 2016-17-18 जो त्रिपुरा में सरकार आया था उसका हाथ यूथ आईपीएफटी का होता है। उसके बाद 4 साल में आप लोग देखा है त्रिपुरा स्टेट में क्या हुआ। आज में कंपेयर जो घर में विदाउट गार्जियन तो उस घर में कितने दिन रहेगी वो सोचने का बात है। इसलिए मैं अभी महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड जो सबके लिए जो इसलिए त्रिपुरा के लिए जो अभी फाइट कर रहे हैं, हम लोग एज ए त्रिपुरा अभी महाराजा के साथ हैं, इसलिए मैं अभी महाराजा के साथ में आया हूँ। तो आप लोग जब आईपीएफटी में थे, जब 4.5 साल तक त्रिपुरालैंड के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो बीजेपी वालों ने अपना काम नहीं किया था? आप लोग ने देखा है आफ्टर इलेक्शन असेंबली में मैं बहुत बार कोशिश किया हूँ और एक्स एमएलए डीसीपी में बहुत बार कोशिश किया है। मेरे एक क्वेश्चन भी है, मैंने त्रिपुरालैंड के लिए क्वेश्चन भी किया, वो भी कैंसिल हुआ, आप लोग जानते हो। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ क्योंकि जिस घर में गार्जियन नहीं है उस घर में तो इतना दिन नहीं आप लोग देखा है ये, और मैं बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं, सब लोग जानते हैं। जिस डिमांड को लेके आप लोग आए थे, এনসি বাবু তো রয়েছে, এখন আপনি একটু আগে বললেন যে আপনারা বললে ও এইভাবে রয়েছে, এনসি বাবু তো রয়েছে, ওনার কাছে কি আশা আছে আজ পর্যন্ত? আপনারা জানেন আমাদের এনসি দেববর্মা, আমি শ্রদ্ধা করি সিনিয়র লোক, সেই তো ওখানে অসুস্থ, যদি একজন ফাউন্ডার অফ আইপিএফটি এবং যে গার্জেন তাই যদি অসুস্থ, তো ওই গার্জেন ওই কোর্ট কীভাবে চলবে বুঝছেন? ना धनंजय, जिस डिमांड को लेके आईपीएफटी पॉपुलर हुआ था त्रिपुरालैंड का,
उसको आप लोग फुलफिल क्यों नहीं कर पाए 4.5 साल में? और अब एक बार भी आप लोगों ने असेंबली में उठाया नहीं, एक एमएलए के सिवा आपने भी कभी उठाते हुए नहीं देखा। मैंने बोला था, मेरे क्वेश्चन भी किया था, मेरा क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ। उसका कॉपी है मेरे पास जो मैंने क्वेश्चन किया है। तो हम लोग ने बहुत बार ट्राई किया है। ये नहीं कि एमएलए लोग जो जिस डिमांड को लेके हम लोग, जिस मुद्दा को लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, उस मुद्दा को हम लोग कभी रेस्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत बार कोशिश किया असेंबली में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी कैंसिल कर दिया गया। बीजेपी ने क्लियर बोला है कि वी डोंट सपोर्ट ट्रिपल डिमांड, बट ट्राइबल लोगों के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने इवन निर्मला सीतारमन ने एक पैकेज डिक्लेयर किया है 1300 करोड़ का, अलग पैकेज वो लोग बोल रहे हैं। आप लोग कितने इसको देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हम ये पैकेज वाला ये ना बोलने से अच्छा है। पैकेज लेके हम लोग त्रिपुरा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम लोग मुक्ति चाहिए तो ग्रेटर त्रिपुरा ले मेन मुद्दा महाराजा जितना भी हम लोग के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग को, इसलिए हम अभी त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरा अभी महाराजा है गार्जियन हमारा, जिस गार्जियन को विश्वास करके हम लोग ने फाइट किया है, उस घर में अभी कमजोर हो, उस घर अभी विदाउट गार्जियन अभी घर हुआ है। तो वो तो पार्टी का अलग बात हुआ, गार्जियन लेस, पर फाइनेंशियल बेनिफिट के सिवा कैसे डेवलप? आप देखें 4 साल में जो त्रिपुरा में कितना डेवलप हुआ, ये तो मैं अलग से बोलने का जरूरत है। स्पेशली एडीसी एरिया में अब क्यों अगरतला में स्मार्ट सिटी होता है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होता है, तो एडीसी में क्यों नहीं? एडीसी में घूमिलों में करो स्मार्ट सिटी, वाई नॉट? Dhananjay, do you feel the development has not happened in the tribal areas under BJP 1? क्या आपको लगता है कि भाजपा के सरकार के जमाने में आपके पूर्वी पार्टी आईटीएफटी भी शायद एक पार्टनर था, तो भाजपा आईटीएफटी की सरकार में ट्राइबल्स के डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? एक दूसरा सवाल सर, जब आपने बोला अभी कि विदाउट गार्डियन है आईटीएफटी, तो हाल ही में एक मसला सामने आया था कि आपके पूर्वी पार्टी के एक लीडर प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद आपके फाउंडर लीडर केम बैक एंड सेड आई एम द वैलिड प्रेसिडेंट, उसमें काफी चर्चा भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है ये जो इंटरनल टेक ओवर ऑफ लीडरशिप था आईपीएफटी में, क्या ये कहीं पे रिस्पॉन्सिबल रहा होगा कि आपका आईपीएफटी गार्डियन लिस्ट हो गया? आपको लग रहा है क्या उसमें कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा? देखिए, आप लोग मीडिया वालों के, आप लोग के पास सब लोगों की खबर है, कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा लीडर क्या हुआ है, आप लोग के पास सब खबर है। मैं एक्स्ट्रा बोलने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो अभी त्रिपुरा में जो पिछली सरकार के जो डेवलपमेंट के बारे में बोल, स्पेशल आप बोलो ना, एडीसी में क्यों 5,000 करोड़ भेजो? लास्ट बजट सीजन में 26,000 करोड़ बजट किया है, तो एडीसी में कितना करोड़ दिया? तो इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, यहाँ इक्वल होना चाहिए, राइट टू इक्वल है, सबको इक्वल के देखो, डेमोक्रेसी सबके समान है, सबके राइट है। आप अगरतला में 1,000 करोड़ आप बजट कर सकते हैं, एडीसी घूमिलों में करो। आप अगरतला में स्मार्ट सिटी आप कर सकते हैं, घूमिलों में करो। एक डेमोक्रेसी कंट्री में सबके समान होना चाहिए, डेवलपमेंट सबके लिए होना चाहिए। तो डेवलपमेंट से नहीं होगा। हम लोग त्रिपुरा सर का जो आइडेंटिटी कहा वो उसके बारे में गवर्नमेंट में सोचना चाहिए। Government should think about the identity. और कोई सवाल होगा तो इसका क्वेश्चन का सवाल है। जब कोई जिब्रासा हमें ज्वाइन करता है तो कंडीशन थी कि ज्वाइन करता है। अगर कोई टिकट के लिए आना है तो वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑपोजिशन भूषण कुमार त्रिपुरा है, ही ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं त्रिपुरा मौका में आऊँ। धनंजय आया है, चीज ऑन सेट मुझे टिकट दो मैं त्रिपुरा मौका में आऊँ। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल पब्लिक भी जानती है कि कौन
टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट के आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंस, नो ऋषिकेतु ये कभी भी अपना टिकट के लिए नेगोशिएट करके विप्रा मोथा में आए। दे हैव कम बिकॉज वी वांटेड टू सर्व द तोहफा और इसी का करें, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद, इलेक्शन के 1 महीने पहले वोटरा चुनाव को लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप करेंगे? आप ही न लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपके जब कोई डिप्रेसा मोथा में ज्वाइन करता है तो कंडीशन लेके ज्वाइन क्या कर रहे हैं? अगर कोई टिकट के लिए आ रहा है तो वो पहले से यहाँ में हमारे फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूषण कुमार चुपड़ा है, ये ज्वाइन। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे टिकट दो तभी मैं तीसरा मौका में आऊँ। धनंजय आया है, चीज ऑन सेट तो मुझे टिकट दो मैं तीसरा मौका में आऊँ। जब ऋषिकेतु आज से 2 साल पहले आया, उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं रखा। ये नॉन अनकंडीशनल पब्लिक भी जानती है कि कौन टिकट के लिए आता है और कौन दफा के लिए काम करने के लिए आता है। तो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन, प्रेसिडेंट के आई एम द चेयरमैन, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। नीदर धनंजय, नो हंस, नो ऋषिकेतु ये कभी भी अपना टिकट के लिए नेगोशिएट करके विप्रा मोथा में आए। दे हैव कम बिकॉज वी वांटेड टू सर्व द तोहफा और इसी का करें, वरना इलेक्शन के 3 महीने बाद, इलेक्शन के 1 महीने पहले वोटरा चुनाव को लड़ना ही है, तो एलिजिबल कैंडिडेट किसको आप करेंगे? आप ही न लीजिए, अगर आप काम करेंगे आपके ये इलेक्शन कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं है, ये 5, 20, 25 कैंडिडेट का लिए इलेक्शन नहीं होगा। ये इलेक्शन होगा 13 लाख डिप्रेसा का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए। अगर आपको कैंडिडेट रखना है, मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये कैंडिडेट का फाइट नहीं है, ये फाइट है फॉर सेफ गार्डिंग का सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो ये बात क्लियर है। आप अगर इसको सिर्फ ये 2018, 2013, 2008 जैसा इलेक्शन नहीं है, ये एक अलग इलेक्शन है। इसमें हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तीपरासा उसी को वोट, तीपरा मोथा को क्यों वोट करेगा कि तीपरा मोथा पार्टी से पहले कम्युनिटी का वेलफेयर को आगे रख रहा है। अगर हम लीडर को सामने रखेंगे तो फिर बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी हैं जो आज तीपरा मोथा में नहीं है लेकिन अपने एरिया में जीरो है। कि पब्लिक को कुछ चाहिए, पब्लिक डिमांड समथिंग। तीपरासा पीपल का कोई डिमांड है, उसी को आगे रख रहे हैं हम लोग। और उसके बाद जो कैंडिडेट का बात है वो लास्ट में डिसाइड किया जाएगा। हम लोग इंटरनली वेट, प्रेसिडेंट आई एम देयर, हम लोग का एक सिस्टम है, हम लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे। अभी हमको अपना एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करना है फॉर ग्रेटर पीपल। अच्छा एमएलए बाबा फाइने सालो तेबो एमएलए रक फाइने कक मारक तो तंग अब जरा फाइकेल ना যোগাযোগ ফাইট दं বিভিন্ন দলের ফাইট নাই নানা ধরনের ফাইট दं যদি মহারাজা যেহেতু ছিলেন গার্জেন যতন কবই दं অজরাবা जों এজে তিপ্রাসা হিসাবে जों তাও সাব তাম খায়াবো নায়াবো উষ্ণ তরজায়বো তাও জরাবো যে মহারাজের যে গ্রেটার ত্রিপুরার যে যতন কবো जों খাইনানি এবং ফাইনাল আগামী দিন আবার এবং বিভিন্ন লিডাররা যোগাযোগ খাই। I think our president would like to say something. যতন ভাইকাম, থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমাদের গৌরবের দিন। মাননীয় ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সিটিং এমএলএ সব কিছু উনি ত্যাগ করেন এবং ত্রিপুরা মোথা আমার চেয়ারম্যান মহারাজ ঠাকুরজির আহ্বানে বলে উনি আসতেন। ওনাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ধন্যবাদ এবং ওয়েলকাম করি। ওনাদের যদি বাবু আছেন, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অধিকাংশ এমএলএ তারা ফ্রাস্ট্রেটেড। এন্ডলেস ট্রেন, ইঞ্জিনবিহীন ট্রেন চলতেছে এরকম একটা শুনতেছি, মানে গার্জেন নেই ওনাদের বক্তব্য। এতে আমরা মনে করতেছি যে ত্রিপুরা মোথা
একটা সংস্থা যেটা আমাদের পুরো ত্রিপুরা জনসাধারণের শিডিউল ট্রাইব হোক, নন শিডিউল ট্রাইব হোক, যে কোনো কমিউনিটির পক্ষে আমরা বক্তব্য রাখি। এবং ত্রিপুরা, গ্রেটার ত্রিপুরা মানে ত্রিপুরার মধ্যে উইদিন স্টেট, এটার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন জনসাধারণের যে প্রয়োজন এগুলি আমরা অ্যাড্রেস করার আমাদের ভিশন আছে। যে যতদূর সরকার, এখন বর্তমান যে সরকার আছে বিজেপি এবং আইপিএফটি, তাদের যে বক্তব্য তারা কতদূর এগুলি করতেছে আপনারা জানেন। আমি আমার নজর নাই, কিন্তু সবারই পক্ষে যে বক্তব্য যে তারা কিছুই করার তারা আর সময় নাই। এখন তো তারা বলছে আমরা আর 5 বছর সুযোগ দেও আমরা করব। বিগত 5 বছর কিছু করেন নাই, এটা আমি বলতেছি এরকম নয়। কিন্তু যারা এমএলএ আছেন, যারা মন্ত্রী আছেন, তাদের নিজস্ব বক্তব্য আমরা বুঝতে পারি যে তাদের গভর্নমেন্টের ইঞ্জিনলেস ট্রেন, মানে ইঞ্জিন নাই এরকম একটা ট্রেন তারা চলতেছে। ওনারা প্রশ্ন আনছেন বিধানসভাতে on the floor of the house, but their questions have been rejected. They are unable to bring their questions on the floor of the house for the interest of the people. And we also had been in the assembly, and we tried our level best to bring the issue of the public. So today also, as our chairman has already said, we are very much united in the organization, so that we can achieve something for the people through our greater people and demand. So therefore today we are grateful, we are happy, we welcome our honorable members, those who come from the assembly and from the public position also. And we believe, according to them, and we shall be able to manage the greater Tripura land in the state, in the field of peace and tranquility also. The people may feel everybody is my brother, everybody is my sister. We work like that. We go everywhere, accepting some politician trying to moralize and give us some wrong color of communion. But we are never communion. It is the propaganda of the communist people also. So we are never communion. So today you have seen in Surma, not only in Surma, in different places, you can have a look and talk to the public. They will witness it, saying that no Tripura Motha is never communal. It is for everyone. We want to work with everybody, and we have to see that our deprived population, there are different minority group in the state also. We should plead for them also. Therefore, one of our honorable MLA, he resigned today after he has been influenced by our chairman, Honorable Dr. Kishore Manikko, and after he made an appeal, it has reached to his heart also. It will be reaching to different hearts of the people. And we believe in days to come, we will be able to stand on our own foot with your cooperation. And you will be publicizing our approach, our mindset with the state. Thank you. I just want to say one thing. एक बात before. Thank you friends. आपने इतना समय लिया है. I know you all also have other press conferences to attend. ये एक प्रोपेगेंडा है, एक बहुत मलिशियस प्रोपेगेंडा है कि हम लोग कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ हैं. सबसे पहले let me assure and tell everyone, we want the development of all communities in Tripura. अगर ADC में डेवलपमेंट नहीं हुआ है वो सच्चाई है, लेकिन ये और एक सच्चाई है कि ADC के बाहर भी बहुत लोगों को डेवलपमेंट नहीं मिला है. आज आप 10,323 टीचर्स के बारे में जब हम लोग फाइट करते हैं तो
तो वो सिर्फ तिप्रासा नहीं, उसमें मणिपुरीज हैं, बंगालीज हैं, मुस्लिम्स हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। जब हम लोग सुरमा से फाइट करते हैं तो एक हिंदुस्तानी चाय बागान वर्कर को हमने जब सीट दिया, वो तिप्रासा नहीं है। हम मणिपुरी बिष्णुप्रिया से बात कर रहे हैं, मैते से बात कर रहे हैं। एससी कम्युनिटीज़ में बहुत बंगाली लीडर्स हैं जिनको डिनाई किया गया है, बहुत फेक एससी सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हाँ, एक बात है कि मैं आपको डिनाई नहीं करूँगा कि इससे पहले रीजनल पार्टीज थे जिन्होंने एक बहुत हार्ड लाइन अप्रोच लिया था, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। I am from a family which has given patronage to the great Nobel laureate Rabindranath Tagore, Jagdish Chandra Bose. हमने कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थियों को हेल्प किया, मेरे फादर ने हेल्प किया 71 यूथ में, यहाँ में पैलेस के सामने हमने हेल्प किया। तो हम लोगों का फैमिली हमने कभी भी कम्युनल आउटलुक नहीं दिया, लेकिन आज दरकार है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अपने तिप्रासा के बारे में बात करें। लेकिन मैं इसका भी आई एम ऑल्सो अवेयर दैट देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आउटसाइड ADC एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। जब बिजली नहीं आता है तो सबको अफेक्ट करता है। रोड अगर हमारे वहाँ में नहीं है तो अगरतला के बाहर भी कोई खास अच्छा रोड नहीं है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम, अगर हमने कहा है कि कोकोरम शुड बी स्पोकन इन रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि हम चाहते हैं इट इज़ नॉट फॉर रिलीजियस पर्पस, इट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आज हमारा बच्चा इंग्लिश और हिंदी सीखेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में अच्छा मिलेगा। तो इसी के लिए हमने ये डिमांड्स उठाया है। हमेशा हमारा डिमांड को एक कम्युनल कलर दिया जाता है। मीडिया, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मीडिया हैज़ सफर्ड ऑल्सो, मीडिया हैज़ नॉट सफर्ड एनी लेस। मैं मीडिया को भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स बदल चुका है त्रिपुरा में, एटलीस्ट रीजनल पॉलिटिक्स बदल चुका है। हम सिस्टम को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। आई हैव गॉट फ्रेंड्स जो तापस दे, मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे इतने अच्छे बंगाली फ्रेंड्स, बंगाली वेल विशर्स है, लक्कीनाथ, मैं खुद कांग्रेस में प्रेजेंट था, हमने सबके साथ काम किया। तो ये लाइन की तिप्रासा जब अपना अधिकार मांगता है तो वो किसी का अधिकार छीनने के बारे में बात कर रहा है, ये बात नहीं है। मैंने दूसरा बात आई वांटेड टू पुट हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट। ये आज मुस्लिम को टारगेट करके हिंदू का पेट नहीं भर रहा है, आज क्रिश्चियन को टारगेट करके बुद्धिस्ट का पेट नहीं भर रहा है। तो आने वाले दिन में क्या हम त्रिपुरा को क्या देखना चाहते हैं? वी वांट डेवलपमेंट फॉर ऑल। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो सबको हेल्प होना चाहिए। हेल्थ केयर में इतने लोग, आज से 2 दिन पहले हमारे चिन्मय कोलोई अम्बासा के ब्लॉक प्रेसिडेंट डेथ हुआ, जॉन्डिस, मलेरिया, उसके बाद हेपेटाइटिस। जब तक जीबी हॉस्पिटल तक वो पहुंचा 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है स्टेट में, तो इसका सजेशन है डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है, लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास है, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ है? हम अपना डिमांड रख रहे हैं पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए ADC में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिप्रासाज एंड नॉन तिप्रासाज, बंगालीज एंड तिप्रासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ। इससे पहले छोटे छोटे, जब IPFT ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, ADC में रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए, वी आर नॉट लाइक दैट। वी आर पीपल हु अंडरस्टैंड
We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan. And we feel that justice should be given to them. And we want justice to be given. But we also deserve some justice. We also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि नेगोशिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज ज्वाइंड आवर पार्टी, वी वेलकम है। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखें। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको त्रिपुरा साहब